تفصیل سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے تیونس کا غیر مولانا دورہ کیا۔ رجب طیب اردوغان نے تیونس کے صدر قیس سعید سے ملاقات کی اور لیبیا میں جاری خانہ جنگی پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ لیبیا میں سیز فائر کے لیے اقدامات اور مذاکرات کی بحالی پر تفصیلی بات چیت کی۔ خیال ہے کہ لیبیا 2011 سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 7 فوجی اور 35 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ شدت پسندوں نے اروندا نامی شہر اور ایک فوجی تنصیب پر حملے کر کے متعدد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وحشیانہ حملے کے بعد برکینا فاسو میں کرسمس کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ شمالی برکینا فاسو میں دہشت گردوں نے سوم صوبے کے شمالی اربندا میں ایک فوجی اڈے اور شہری علاقے کو نشانہ بنایا، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ فوج کے ترجمان کے مطابق یہ ایک زبردست حملہ تھا جس پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ شدت پسندوں کے ایک بڑے گروپ نے اربندا میں فوجی اڈے اور شہری آبادی کو بیک وقت نشانہ بنایا۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ شدید لڑائی میں 80 کے قریب شدت پسند بھی ہلاک ہوئے اور دہشت گردوں کے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا۔ حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں نے اپنی لڑائی میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 31 خواتین سمیت 35 عام شہریوں کا قتل کیا، 6 افراد کو زخمی کیا۔ اس حملے سے متعلق ملک کے صدر روش مارک کرسچن کبورے نے فوج کی صلاحیت اور شجاعت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وحشیانہ حملے کے نتیجے میں 35 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، جس میں سے بیشتر خواتین ہیں۔ صدر کبورے نے ان ہلاکتوں کے لیے قومی سطح پر 2 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا۔ اس ہلاکت خیز حملے کے بعد ملک بھر میں کرسمس کی تقریبات منسوخ کر دی گئی۔ ابھی تک ان حملوں کی کسی بھی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم حکومت اس طرح کے حملوں کے لیے شدت پسند تنظیم القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ سے وابستہ شدت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہراتی رہی ہے۔ اسی ماہ کے اوائل میں ملک کے مشرقی علاقے میں ایک بندوق بردار کی چرچ میں فائرنگ سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سن 2012 میں پڑوسی ملک مالی میں اسلامی شدت پسند تنظیموں کی بغاوت کے بعد سے ہی نائجیریا اور برکینا فاسو میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ سن 2015 سے برکینا فاسو میں خاص طور پر شدت پسندی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اب تک ان حملوں میں 700 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 5.5 لاکھ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ سعودی عرب کے مقتول صحافی جمال خاشقجی کی منگیتر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ خاشقجی قتل کیس میں ملوث افراد کو سزائے موت دینے سے سچ چھپ جائے گا۔ خاشقجی کی منگیتر کا ماننا ہے کہ اس سے اصل مجرم بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کے مقتول صحافی اور سعودی حکومت کے سخت ناقد جمال خاشقجی کی منگیتر نے کہا ہے کہ خاشقجی قتل کیس میں ملوث 5 افراد کو سزائے موت دے دی گئی تو حقائق پر پردہ پڑ جائے گا، اصل مجرم بچ جائیں گے۔ خاشقجی کی منگیتر نے سعودی عرب کی عدالت کی جانب سے جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث 5 افراد کو سزائے موت اور دیگر 3 کو قید کی سزائیں سنائے جانے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بند کمرے میں ہونے والے ٹرائل غلط اور غیر منصفانہ ہے۔ خاشقجی کی منگیتر نے مزید کہا کہ ٹرائل سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ قاتلوں نے جمال خاشقجی کو کیوں قتل کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان افراد کو کوئی بیان ریکارڈ کرانے یا وضاحت کا موقع نہ دیا گیا تو ہمیں یہ کبھی بھی پتہ نہیں چل پائے گا کہ خاشقجی کو مارا کیوں گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عالمی اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ اس عدالتی فیصلے کی مذمت کریں اور سزائے موت پر عمل درآمد کو رکوائیں، کیونکہ یہ حقائق چھپانے کی ایک اور کوشش ہے۔ جمال خاشقجی کی منگیتر عالمی سطح پر اس قتل کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ ترکی نے بھی جمال خاشقجی قتل کیس کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ ترکی نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے برخلاف اور ہر ذی شعور شخص کے لیے باعث شرم ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو اس مقدمے کا پیچھا کرنا چاہیے جب تک کہ اس قتل کے اصل کردار سامنے نہیں آ جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک قونصل خانے میں خاشقجی کا قتل بین الاقوامی سفارتی آداب اور روایات کی کھلی خلاف ورزی تھا، لہٰذا جب تک اس معاملے میں انصاف نہیں ہو جاتا ترکی اس کی پیروی کرتا رہے گا۔
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 2 अक्टूबर को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में हुए इस कत्ल पर मगरबी मुमालिक अमेरिका और उसकी एजेंसियां सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को इसका जिम्मेदार ठहराती रही हैं। हालांकि सऊदी हुक्काम इन इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इराक में नए इंतखाबी कवानीन मुतारफ करा दिए गए हैं। इराक की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद अल हलबूसी का कहना है कि अब उम्मीदवार इनफरादी तौर पर भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। इससे काबिल वोटरों के पास सिर्फ सियासी जमातों की फहरिस्तों में से किसी एक को चुनने का इख्तियार था। अल हलबूसी के मुताबिक अब इंतखाबी अजला भी बनाए जाएंगे। इराक में हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज के दौरान एक अहम मुतालबा इंतखाबी कवानीन में तब्दीली का भी था। 1 अक्टूबर से जारी इन मुजाहरों में अब तक 450 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों जख्मी हुए हैं। शाम के शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में शामी फौज के शदीद हमले की वजह से हजारों पनाह गुज़ीरों का तुर्की की सरहद की जानिब बढ़ने का सिलसिला जारी है। बुध को भी पनाह गुज़ीरों की गाड़ियों का काफिला तुर्की की सरहद की जानिब बढ़ता नजर आया। शामी फौज इदलिब में अपने पांव जमा रही है और बागी जंगजुओं से उस इलाके को खाली कराने के लिए उन पर हमले कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम के ताज़ा हमलों के बाद इदलिब से 60,000 पनाह गुज़ीरों ने नकले मकानी की है। من هالضرب هذا وخوفنا على اولادنا وحوالي بدها حرم الله ما نطلع. الواحد بيطلع من طيبه وواحد بيعيب بيته من طيبه. अमेरिका ने कहा है कि वो आतिश मवाद की निशानदेही करने वाले खोजी कुत्तों को उर्दन और मिस्र नहीं भिजवाएगा, क्योंकि गफलत की वजह से वहां बहुत से जानवरों की हलाकत हुई है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान का कहना है कि किसी भी कुत्ते की मौत निहायत अफसोसनाक है। रवां बरस सितंबर में अमरीकी रिपोर्ट में यह सामने आया कि हालिया बरसों में उर्दन और मिस्र और दीगर 8 ममालिक में भिजवाए जाने वाले 100 से ज्यादा कुत्तों की हिफाजत के मामले में कोताही बरती गई है। याद रहे कि अमेरिका की जानिब से ये तरबियत याफ्ता कुत्ते इंसदाद दहशतगर्दी प्रोग्राम के तहत इन ममालिक में भिजवाए जा रहे थे। उर्दन और मिस्र की जानिब से अब तक इस अमरीकी फैसले पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से हालिया दिनों जारी करदा मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान को खुसूसी तशवीश के हामिल मुल्कों में शामिल करने के इक़दाम को यकतरफा और मनमाना करार दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान में जारी करते हुए कहा कि अमरीकी रिपोर्ट पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ायक़ से मुताबिकत नहीं रखती। इस रिपोर्ट के काबिल एतबार होने और शफाफियत पर सवालिया निशान पैदा होते हैं। और वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस्लामाबाद हुकूमत अमरीकी रिपोर्ट को सख्ती के साथ मुस्तरद करती है। ख्याल रहे कि 20 दिसंबर को जारी हुई रिपोर्ट में अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा था कि बर्मा, चीन, ईरान, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इन मुल्कों में शामिल है जिन्हें बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के 1998 एक्ट की रूह से खुसूसी तशवीश की हामिल मुल्क करार दिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी क्रिसमस के मौके पर शुमाली कोरिया के किसी भी तोहफे से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि शुमाली कोरिया अच्छा सा क्रिसमस गिफ्ट देने की मंसूबाबंदी कर रहा हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका मुल्क क्रिसमस के मौके पर शुमाली कोरिया के जरिए दिए जाने वाले किसी भी तोहफे से निपटने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि हम पता लगाएंगे कि शुमाली कोरिया का अमेरिका के लिए क्रिसमस पर क्या तोहफा होगा और हम उससे बहुत कामयाबी से निपटेंगे। तहम उन्होंने ये भी कहा कि शायद वो बहुत अच्छा तोहफा हो और ये भी मुमकिन है कि वो मिसाइल तजुर्बे के बजाय मुझे फूलों का गुलदस्ता भेजें। अमरीकी मिलिट्री कमांडर ने शुमाली कोरिया की जानिब से क्रिसमस के मौके पर तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल तजुर्बे का इम्कान जाहिर किया था। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने धमकी दी थी कि अमरीका अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल करे, वरना वो खुद इंतखाब कर ले कि उसे क्रिसमस के मौके पर क्या तोहफा चाहिए।
شمالی کوریا نے رواں ماہ کے آغاز پر اپنے دھمکی آمیز بیان میں واشنگٹن پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی تخفیف سے متعلق ہونے والے مذاکرات کو طول دینا چاہتا ہے۔ کم جونگ ان نے کہا تھا کہ اگر رواں برس کے آخر تک اس پر عائد پابندیوں میں نرمی نہیں کی گئی تو وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ پیانگ یانگ نے یہ بھی کہا تھا کہ کرسمس گفٹ کا تعلق امریکی اقدامات سے ہوگا۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا نے آخری مرتبہ نومبر 2017 میں بین البراعظمی میزائل ہاسونگ 15 کا تجربہ کیا تھا، جسے اب تک کا سب سے بڑا میزائل تجربہ کہا جاتا ہے۔ پیانگ یانگ کا کہنا ہے کہ ان کے میزائل امریکہ میں کسی بھی شہر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جزیرہ نما کوریائی خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2018 سے اب تک کم جونگ ان سے 3 ملاقاتیں کر چکے ہیں، تاہم اب تک ان ملاقاتوں کا کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات میں وقفے کے دوران شمالی کوریا متعدد میزائل تجربات بھی کر چکا ہے۔ شمالی کوریا کا مطالبہ ہے کہ اس پر عائد عالمی پابندیاں اٹھائی جائیں، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ پیانگ یانگ کو پہلے جوہری ہتھیاروں کو ترک کرنا ہوگا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف جشن کا ماحول ہے، رنگوں کی بہاریں ہیں اور خوشیوں کی سوغات ہے۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تقاریب کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ مسیحی عقائد کے مطابق کرسمس کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیت لحم میں پیدائش سے منسوب ہے، اسی لیے دنیا بھر کی طرح اسرائیل میں کرسمس کی تقریبات بڑے پیمانے پر منعقد ہوتی ہیں۔ کرسمس کے موقع پر مغربی کنارے میں واقع شہر بیت لحم میں سینکڑوں افراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے منسوب چرچ کے باہر جمع ہوئے۔ ہزاروں افراد چرچ آف نیٹیویٹی میں جمع ہوئے اور کرسمس کا تہوار پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ مسیحی تعلیمات کے مطابق یہ چرچ اس جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے بھی اس میں شرکت کی۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی کرسمس کی خوب دھوم نظر آئی۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، ترکی، میکسیکو، اسپین اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کرسمس کا تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے میں کیک تقسیم کر رہے ہیں، رنگ برنگے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر جگہ جگہ خوبصورت روشنیوں کا نظارہ بھی دیکھنے میں آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کرسمس کی تقریبات میں شرکت کی۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ویٹیکن میں کرسمس کے شبینہ اجتماع سے خطاب کیا۔ پوپ فرانسس نے کرسمس کے موقع پر اپنے روایتی پیغام میں کہا ہے کہ خدا سب انسانوں سے محبت کرتا ہے، خواہ کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ Non dipende da te. پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی میں کرسمس کے موقع پر سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں منعقد ہوئی روایتی تقریب کے موقع پر ہزاروں افراد کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ پوپ فرانسس نے اپنے خطاب میں کہا کہ کرسمس ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ خواہ ہم کتنے بھی برے ہوں لیکن پھر بھی خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ رومن کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا نے مزید کہا کہ آپ کئی بار سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو خدا بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، اور اگر ہم برا کام کریں گے تو خدا ہمیں سزا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ آپ سے ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ پوپ فرانسس نے تلقین کرتے ہوئے کہا کہ ہم بچوں کے بارے میں غور کریں اور خود کو ان کی محبت میں فنا کر دیں، اس کے بعد ہمیں یہ شکایت نہیں رہے گی کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مت سوچیں کہ انسانیت سے محبت وقت کی بربادی ہے، ہمت باندھیں، اعتماد مت کھوئیں اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ پوپ فرانسس نے یہ بھی کہا کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے تحفہ بنیں، یہ عمل زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے دوسروں سے احترام نہ چاہیں، ہمسائے سے اچھے برتاؤ کے لیے اس کے اچھے ہونے کا انتظار نہ کریں۔ Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene, ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato, non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, puoi averne combinate di tutti i colori,
ma il Signore non rinuncia a volerti bene. Quante volte pensiamo che Dio è buono se noi siamo buoni e che ci castiga se noi siamo cattivi. Non è così. Nei nostri peccati continua ad amarci. Il suo amore non cambia, non è permaloso, è fedele, è paziente. Ecco il dono che troviamo a Natale. Posiamo lo sguardo sul bambino e lasciamoci avvolgere della sua tenerezza. Non avremo più scuse per non lasciarci amare da Lui. Quello che nella vita va storto, quello che nella Chiesa non funziona, quello che nel mondo non va, non sarà più una giustificazione. Passerà in secondo piano, perché di fronte all'amore folle di Gesù, a un amore tutto mitezza e vicinanza, non ci sono scuse. पोप फ्रांसिस का ये बयान इस लिहाज से काफ़ी अहम है कि हालिया अरसे में चर्च से मुतालिक कई स्कैंडल सामने आए हैं जिनमें जिनसी ज़्यादतियों के इल्ज़ामात भी शामिल हैं। पोप ने अपनी तकरीर में ताहम ऐसे वाक़यात का बराह रास्त कोई जिक्र नहीं किया। ख्याल रहे कि दुनिया भर में पादरियों की जानिब से जिनसी बदफेली के इर्तिकाब की हज़ारों रिपोर्ट सामने आई हैं। चर्च पर ये इल्ज़ामात भी हैं कि आला मजहबी पेशवाओं की जानिब से इन वाक़यात पर पर्दा डाला गया। पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता हफ्ते कैथोलिक चर्च की मालूमात खुफिया रखने से मुतालिक इन कवायद को ख़त्म करते हुए कई अहम तब्दीलियाँ मुतारिफ कराईं जिन कवानीन की वजह से मसीही मजहबी पेशवाओं की तरफ से बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात सामने नहीं आते थे। नई इस्लाहात के बाद अब पुलिस के लिए मजहबी पेशवाओं के खिलाफ जराइम की तफ्तीश की राह में हायल एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। पोप फ्रांसिस को इस हवाले से बहुत शदीद दबाव का सामना रहा है कि वो इस बहरान से निपटने के लिए लीडरशिप फराहम करें और बहरान का कारआमद तौर पर हल निकालें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन के वजीर आजम ली केचियांग ने जिंगडो में बुध को जापान के वजीर आजम शिंजो आबे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ बाहमी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद ली केचियांग ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि दोनों ममालिक अपने बाहमी ताल्लुकात को इस्तवार रखना जारी रखें और बाहमी माशी इश्तराक पर तवज्जो मरकूज करें। वहीं शिंजो आबे ने कहा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बेहद अच्छे हैं। 从中方加强在投资、创新、第三方市场等领域的合作，推动人文交流，也愿意在现代服务业，包括证券、寿险、现代服务业里面的养老、医疗等方面的日常合作，我们还愿意进一步扩大服務業市場の開放。現在、日中関係は順調に改善をしているわけでございますが、来春の習近平主席の国賓訪日の成功に向けて、この落ち着いた雰囲気の中で、今日は李克強総理と対極的な、そして忌憚のない意見交換を行いたいと思います。हांगकांग में क्रिसमस की शब नए मुजाहरे फूट पड़े। हांगकांग शहर के कई इलाके खरीदारी के मारूफ मराकज़ और मशहूर सयाहती मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम हुआ। मुजाहिरीन ने हदफ बना उन दुकानों को निशाना बनाया जिनके अवामी जमहूरिया चीन से कारोबारी राब्ते हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस और तेज़ धार पानी के इस्तेमाल के साथ साथ उन पर लाठीचार्ज किया। हांगकांग के तमाम मेट्रो स्टेशन हिफाजती इक़दामात के तहत बंद कर दिए गए हैं। चिली के साहिली शहर वालपाराइजो के जंगलात में लगी आग की वजह से कम 120 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने वाले अमले ने बताया कि शहर के कई इलाकों को खाली करा लिया गया है। शहरी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने बताया कि आतिशज़दगी की वजह से 100 हेक्टर रकबा मुतासर हुआ है। वालपाराइजो शहर का कदीमी हिस्सा यूनेस्को के सकाफती विरसे में शामिल है। हज और उमरा के नाम पर निजी टूर ऑपरेटर्स की धोखाधड़ी के मामलात अक्सर व बेशतर पेश आते रहते हैं। बेंगलुरु में निजी टूर ऑपरेटर्स की तंजीम ने आवाम से अपील की है कि वो रजिस्टर्ड ऑपरेटर के जरिए ही हज या उमरे का सफर करें।
बेंगलुरु में कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन का सालाना इजलास मुनक़िद हुआ। सफर हज और उम्रे से जुड़े अहम मसाइल पर इस दौरान गौर व खौज किया गया। इजलास में इराक और जॉर्डन के साबिक सफीर ने भी शिरकत की। इस मौके पर जीएसटी के मसले पर गुफ्तगू हुई। मरकजी हुकूमत से अपील की गई कि वो हज कमेटी और निजी टूर ऑपरेटरों के आज़म हज के दरमियान तफरीक न करे। The Central Hajj Committee people are exempted from GST. Very good. Welcome that. It is the thing. But the same thing is collected from the Hajis who avail of the services of the tour organizer, tour organizer. I think this is violate the principle of parity, principle of equity, principle of fairness, and amounts to discrimination among the same section. ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हाजी होता है, जो हज कमेटी से जाता है वो भी इंडियन सिटीजन है, जो प्राइवेट टूर से जाता है वो भी इंडियन सिटीजन है। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इजलास में हज और उम्रे के नाम निजी टूर ऑपरेटरों के धोखाधड़ी के मामलों पर तशवीश का भी इजहार किया गया। आवाम से अपील की गई कि वो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटरों के जरिए ही हज और उम्रे का सफर करें। वो गवर्नमेंट के, क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ये इसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकती, उसके अंदर हम लोगों का भी पार्टिसिपेशन, पॉलिटिशियंस का पार्टिसिपेशन और मस्जिद के कमेटीज़ का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है कि उनको बताना चाहिए कि कोई एरा गैर आके एकदम खड़ा रह के मैं हज को बुला लेके जाता हूँ करके बोलता है, उसका कुछ बैकग्राउंड नहीं रहता, पैसे कलेक्ट कर देता है। वो अभी हाल में देखें बहुत सारे जो ओवरनाइट पैसे लेके भाग गए, 100 से 150 हुज्जाज इकराम का तिलक नगर पुलिस स्टेशन में भी कम, हमारे ज़मीर साहब हम जाके वो मसला भी अटेंड किए। सिर्फ रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स के साथ वो सफ़र करें हज का, और उम्रे के लिए आप रेफ़र करें एसोसिएशन को कि ये क्या सही टूर है, इसके साथ जा सकते हैं क्या, ये देख के ही आप बुक करें। सऊदी अरब और हुकूमत हिंद के दरमियान हुए मुआहदे के मुताबिक हिंदुस्तान का हज कोटा 2 लाख पर मुश्तमिल है। इसमें तकरीबन 60,000 का कोटा निजी टूर ऑपरेटरों में तकसीम किया जाता है। मुल्क भर में 750 से 800 रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर मौजूद हैं। निजी टूर ऑपरेटरों की तंजीम ने आवाम से अपील की है कि वो हज या उम्रे के सफर इख्तियार करने से कबल टूर ऑपरेटरों के मुतालिक तस्दीक और मुकम्मल जानकारी हासिल करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। मुंबई के नेहरू सेंटर में पासबान अदब की जानिब से पोएट्री फेस्टिवल का इनकाद अमल में आया। प्रोग्राम में मारूफ नगमानिगार और शायर इरशाद कामिल ने इंक बैंड के तहत उर्दू शायरी को लाइव बैंड में पेश किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। वाज़ेह है कि लाइव बैंड के तहत उर्दू शायरी का तजुर्बा बहुत अनोखा और नया है। दोपहर के वक्त मराठी ज़बान का भी प्रोग्राम पेश किया गया, जबकि शाम के वक्त लाइव बैंड और गालिब की गज़लों पर मबनी शाम गज़ल का इनकाद अमल में आया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने कैसर खालिद से प्रोग्राम की खुसूसियत से मुताल्लिक बातचीत की। पानी अदब एक और मीरास, कल्चर और तहजीब का प्रोग्राम लेके आई है। हमारे साथ कैसर खालिद साहब है। हर साल की तरह इस साल भी आपने जो है वो ज़बानों को मिलाने का काम किया है। इस मरतबा मराठी और उर्दू ज़बान को जो है वो मुश्तरका तौर पर आप पेश कर रहे हैं। आपने जो है वो इंक बैंड का तस्वीर पेश किया है, जो कि मतलब उर्दू दुनिया में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मुनफरिद है। इंक बैंड क्या है और किस तरह परफॉर्म होगा और इसकी अहमियत और खासियत बताइए क्या है? इंक बैंड इंडिया का पहला पोइट्री बैंड है। मशहूर फिल्मी नगमा निगार, लिरिसिस्ट, पोएट, इंटेलेक्चुअल राइटर इरशाद कामिल साहब ने इस बैंड को शुरू किया है। वो खुद इसके लीड परफॉर्मर भी हैं। इसमें म्यूजिक और ख़ासतौर से वेस्टर्न म्यूजिक और हिंदुस्तानी पोइट्री इसको जमा किया गया है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सा कंसेप्ट है। आज तक आपने देखा होगा कि जो हमारी गायकी है गज़लों की या नज़मों की, वो सिर्फ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स पे होती है। अब इसको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ यूथ को अपील करने के फॉर्मेट में भी कंपोज किया गया है। तो इंक बैंड ऐसा बैंड है जिसमें कि आपको पोइट्री विथ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स एक बैंड के फॉर्म में सुनने को मिलेगी। और उसकी वजह से जो आज एक हम देख रहे हैं नौजवानों का कि अपनी जुबानों, अपनी भाषाओं की तरफ से वो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि न्यूट्रल हो गए थे, उसको कुछ लेना देना नहीं था। जितना उनका काम था वो अंग्रेजी में या मिक्स लैंग्वेज में चल जाता था, तो लिटरेचर नहीं पढ़ते थे। इसकी वजह से वो लिटरेचर की तरफ मतवज्जे हो रहे हैं। बिल्कुल ओरिजिनल कंपोजिशन है और आपको ये गज़लें भी आज का
फ्लेवर लिए हुए मिलेंगे। उसको जिस हिसाब से हमने कंपोज किया है कि आज के दौर में पॉपुलैरिटी है, जिस चीज़ से लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस अंदाज में हमने उसको ढालने की कोशिश की है ताकि गालिब की रेलिवेंस आज के जनरेशन तक भी पहुंचे। अच्छा, पासबान अदब जो है वो कई सालों से प्रोग्राम करता आ रहा है, इसका मकसद क्या होता है? कैसर खालिद जो है वो किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पासबान अदब का मिशन है हारमनी थ्रू लिटरेचर, और हमने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि आज के दौर में जबकि मटेरियल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, इंसान कहीं पीछे छूटता जा रहा है, इंसानियत कम होती जा रही है, हम अपने पड़ोसियों को नहीं पहचानते जबकि हम ऊंची ऊंची इमारतों में भी रहने लगे हैं। तो इंसान के अंदर जो इंसानियत का जज्बा है वो तभी बेदार होगा जब उसके दिल में जो सोच है, जो फिक्र है, जो मोहब्बत है, जो अखुवत है, जो उनसियत है, वो जिंदा रहेगी। हमारा ये सारा का सारा प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म देता है मोहब्बत के जज्बे को तरवीज और तशरीह के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। आपके दिल में जो जज्बे पैदा होते हैं उसको एक लैंग्वेज मिले, उसको एक एक्सप्रेशन मिले, उसके लिए स्टेज फराहम करता है, और साथ ही साथ ये दिलों को जोड़ने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि जब आप दिल जोड़ेंगे तो आप समाज को जोड़ेंगे, जब समाज जोड़ेगा तो मुल्क जोड़ेगा, मुल्क मजबूत होगा। पासबान अदब का मिशन है कि हारमनी थ्रू लिटरेचर, अदब के जरिए जो है वो समाज में हम आहंगी पैदा करने का काम कर रहा है। मिर्ज़ा गालिब को जो है वो कोशिश की जा रही है कि नई नस्ल पहुंचाई जाए, उसी के साथ साथ जो है वो इंक पैड का नया तस्वीर लेके जो है पासबान अदब कैसर खालिद की रहनुमाई में आगे बढ़ा है। कैमरा पर्सन राजमनी पिल्ले के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट, फर्जी कंटेंट एक आम बात हो गई है। इस मामले में सही और गलत में तफरीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरपसंद अनासिर फेक अकाउंट और मारूफ और बड़ी शख्सियतों के भी बनाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के साथ। नीता अंबानी का फेक ट्विटर अकाउंट बनाकर शहरियत तरमीमी कानून से मुताल्लिक ऐसे मुतनाज़ा ट्वीट किए गए जिस पर हंगामा बरपा हो गया है। मामला सामने आने के बाद रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने इस फर्जी ट्विटर हैंडल से किए गए मुतनाज़ा ट्वीट्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के तर्जुमान ने नीता अंबानी का इस तरह का कोई ट्विटर हैंडल होने से इनकार किया है और ट्वीट्स और तमाम तस्वीर को फर्जी करार दिया। फर्जी अकाउंट को मुअत्तल कर दिया गया है।